chemistry portion as well as biology portion. The weightage already I have informed you. Let's revise it once again. Now the portion which is left is physics. The portion which is left is physics, and the weightage of this portion of physics is 25 marks, which we have already discussed earlier also. So let me clarify that there are two units of physics, or we can say there are basically four chapters in physics. Very first chapter is electricity, second chapter is magnetic effect of current, third chapter is light, and the fourth chapter is human eye and colorful world. So all completed 25 marks are divided into these four chapters, in which electricity and magnetic effect of current, that is carrying 13 marks of questions, and light, human eye and colorful word, it carries 12 marks question. So basically electricity and magnetic field effect of current जो है, that is the chapter which is a numerical based and sometimes theoretical based as well. So let's start with the first chapter, which is electricity. So chapter electricity, it is the very first chapter. Basically numerical based questions will be coming. Few direct question, few change of questions are coming from this chapter. So basically focus on learning of the concept, the formula, and how to apply formula in the questions. So today we are going to revise. Later on we are going to discuss the questions as well. The special question and the questions which are being repeated continuously in the exams and all. So let's start electricity. Electricity means all about the electric current. We all know, we have discussed the structure of atom, and we all know that atoms carry a charge. So it's a fundamental particle present in an atom, that is a charge. एंड चार्ज हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पे होता है ना. हम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं लेते हैं तो एटम पे चार्ज होता है. तो इट्स एन फंडामेंटल पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन एटम, दैट इज नोन एज चार्ज. नाउ चार्ज कैन बी अ पॉजिटिव entity or it can be a negative entity. It can be positive or negative, and it works in the same attract, same repel, and different will attract. So if the same charges are there, then it will repel each other. And if it is a different charges or unlike charges, okay, two words are we are using. We are using like charges, and the other word which we are using, that is known as unlike charges. If they come next to each other, एक दूसरे के पास आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो एक सिंपल लैंग्वेज में, इफ इट इज अ पॉजिटिव वन, इट विल रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे. बट इफ इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे विल कम टू नेक्स्ट ईच अदर एंड दे विल अट्रैक्ट विथ ईच अदर. अब मैं यदि चार्ज की बात कर रही हूँ ऑब्वियसली, तो एक चार्ज जो होता है, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, SI unit means standard unit. Where if you are studying in America, if you are studying in France, wherever you are studying, these are the measurement units which cannot be changed. वो country to country change नहीं होती, that is fixed. So SI unit of charge is coulomb. Okay, SI unit of charge is coulomb. Obviously अब इसकी एक कूलाम की कोई ना कोई क्वांटिटी तो होती होगी, है ना. मैं यदि एक कूलाम की बात करूं, तो उसकी क्वांटिटी क्या होती है, उसका होता है दैट इज 6 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन. मीन्स उसमें इतना चार्ज होता है जितना 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में होता है. 1 कूलाम इज इक्वल्स टू. अब हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है. उसको नेगेटिव चार्ज एंटाइटी हमें पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो उसका कितना नेगेटिव चार्ज होता है. तो एक इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19. अब ये जो यूनिट्स है ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल के लिए यू हैव टू लर्न दिस. एक कूलाम इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, and 1 electron is equals to 1.6 multiply 10⁻⁻19. इतना उसमें चार्ज होता है. तो यदि हमें किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट चार्ज निकालना है,
तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, Q इज इक्वल्स टू NE। तो यहाँ Q क्या है, दैट इज चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E मीन्स चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो Q क्या हुआ, चार्ज, N is equals to number of electron, E is equals to charge on one electron. So this is the formula, very first formula of this chapter, by which you can easily identify that what is Q is equals to Ne। किसी का टोटल चार्ज का क्वेश्चन आता है कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो उसका टोटल चार्ज क्या होगा, तो देन यू हैव टू अप्लाई दिस। या आपको टोटल चार्ज दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने, देन यू हैव टू क्रिस क्रॉसेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू Q बाय E। सो दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू चार्ज। ठीक है, अब ये हमने पहली बात करी। अब चार्ज आया है तो करंट भी आएगा, है ना, चार्ज है कुछ निकल रहा है तो करंट भी आएगा। तो अब करंट की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट। चलिए अब हम करंट की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं करंट। और करंट का जो सिंबल है दैट इज आई। करंट का क्या सिंबल है, आई। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, करंट इज इक्वल्स टू Q बाय T। Q मीन्स कितना चार्ज उसमें ट्रांसफर हो रहा है, और टाइम मीन्स सेकेंड्स में, कितने सेकेंड्स में वो, कितनी देर तक वो चार्ज हो रहा है ना, कितने उस रेट से फ्लो हो रहा है। तो दैट इज नोन एज करंट। एंड आई इसकी यूनिट जो है, SI यूनिट, दैट इज एम्पियर। ठीक है, तो करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। अब हमें पता कैसे पड़ेगा कि करंट क्या है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए। देयर सम इंस्ट्रूमेंट इन द सर्किट व्हिच विल गिव यू एन आइडिया, यस दिस मच ऑफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किट। सो दिस इज डन बाय अमीटर। कौन सी चीज यूज करते हैं हम, अमीटर। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट। ठीक है, ये किस लिए काम आता है, इट इज यूज टू मेजर द करंट इन सर्किट। अब इसका सिंबल हमें पता होना चाहिए, तो ऐसे सर्कल करके ए लिखते हैं। एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव पे अरेंज होता है, एक इसका नेगेटिव पे। अब हमें ये भी पता होना चाहिए इसको सर्किट में लगाते कैसे हैं, है ना। तो सर्किट जो होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। रेजिस्टेंस मीन्स जो फ्लो करने को, करंट को फ्लो करने से रोकता है, वो इसका बहुत कम होता है। तो इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो इसको हमेशा हम जब लगाएंगे वो सीरीज में लगाएंगे। इसकी हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल की। अभी एक बार आप ये समझ लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। दैट इज वाई वी नीड टू पुट इट इन अ सीरीज फॉर्मेशन इन द सर्किट। ठीक है, इसको हम सीरीज में लगाते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है करंट के लिए। जब हम करंट के लिए पढ़ रहे थे, है ना, तो जब एवरीबडी वाज डिस्कवरिंग, जब हमारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, करंट को तो पहले डिस्कवर कर लिया पर इलेक्ट्रॉन को बाद में डिस्कवर किया, है ना। तो हमारा जो कन्वेंशनल करंट है वो उल्टा होता है। एक हमारी बैटरी ली हमने, ठीक है। अब हमें सबको पता है बैटरी का ये जो कैप वाला पोर्शन होता है दैट इज पॉजिटिव पोर्शन, और ये जो फ्लैट पोर्शन होता है दैट इज नेगेटिव पोर्शन। ये हमें सबको पता है, सब डालते हो ना, रिमोट में सेल डालते हो, जहाँ स्प्रिंग होती है वहाँ पे फ्लैट पोर्शन लगाते हो, और जहाँ पे स्प्रिंग नहीं होती है वहाँ पे कैप वाला पोर्शन लगाते हो। इवन वहाँ पे आइडेंटिफाई उसमें मार्क भी होता है कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो बैटरी सबको पता है। अब इस बैटरी में क्या होता है, जो फ्लो होता है करंट का, यूजुअली इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मींस इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी करंट फ्लो होगा, पर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बाद में हुई, पहले करंट का पता लगाया। तो अब ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ जाएगा, और जो सर्किट में आएगा वो आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, वापस बता रही हूँ मैं आपको, दैट इज वाई कन्वेंशनल करंट इज डिफरेंट। तो ये जो यहाँ पे जो हम सर्किट में जो बताएंगे करंट, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से बताएंगे करंट।
है ना? हम किससे बताएंगे? पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से। ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन से होता है, पर क्या होगा, बैटरी के अंदर तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा और बैटरी के बाहर ये पॉजिटिव टर्मिनल से हम नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाएंगे। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। ये कन्वेंशनल करंट तो ये होता है, पर सर्किट में हम ये बताते हैं। दिस इज द रीजन, है ना? इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस साइन से डेजिग्नेट करते हैं? वी। पोटेंशियल डिफरेंस मींस जितना काम किया गया है चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? तो अब काम अपन करते हैं, वर्क डन जो हमारा होता है उसकी जो यूनिट होती है दैट इज इन जूल, और चार्ज को ले जा रहे हैं दैट इज इन गुलाम। ठीक है? और पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने वी बोल दिया, उसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है? तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है दैट इज V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये बनेगा हमारा V इज इक्वल्स टू W बाय Q। तो मतलब जब मैं 1 जूल काम करूंगी, है ना, 1 कूलाम चार्ज को एक सिरे से दूसरे तक ले जाने पर, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरा 1 वोल्ट। ओके, वापस मैं आपको बताती हूँ। देखो, वर्क डन की जो है, जो काम करते हैं दैट इज कम इन जूल, है ना, और चार्ज हमारा आता है कूलाम में। तो जब मैं 1 जूल काम करूंगी एक कूलाम चार्ज को पहुंचाने के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक, तो मेरा जो वोल्ट होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 1 होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करने के लिए एक अपरेटस काम आता है विच इज नोन एज वोल्टामीटर। ये वोल्टामीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि भाई इतना काम कर रहा है, ये इतना टाइम लग रहा है इधर से इधर ले जाने के लिए, और इतना वर्क डन हो रहा है, और इतना चार्ज वो ले जा रहा है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को, इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है। द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, दैट इज वाई वी हैव टू प्लेस इट इन अ पैरेलल फॉर्म। आपके सर्किट के पैरेलल फॉर्म में आपका वोल्टमीटर अटैच रहता है, और इसका जो साइन होता है दैट इज वी। ऐसे सर्कल करके ऐसे वी बनाते हैं और इससे दिखाते हैं कि वोल्टमीटर कैसे काम कर रहा है। ठीक है? और हमेशा हमें याद रखना है कि करंट का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, उल्टा नहीं जाएगा। हाई से लो, जिसके पास ज़्यादा होगा वही तो देगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या देगा, है ना? सीधी सी बात है, जिसके पास कुछ होता है वही तो देता है, तो यदि होगा ही नहीं तो कोई क्या देगा, है ना? तो यही चीज़ है कि करंट जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, और सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल प्रोवाइड करवाता है दैट इज सेल। कौन करवाता है पोटेंशियल डिफरेंस? हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें प्रोवाइड करवाता है दैट इज सेल। तो क्लियर हुआ? तो मैंने यदि 1 जूल काम किया है एक चार्ज को पहुंचाने के लिए, तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा, है ना? और इसके लिए हम जो अपरेटस यूज करते हैं टू मेजर इज नोन एज वोल्टमीटर, और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो ये हम पैरेलल लगाएंगे अपनी सीरीज में। ठीक है? अब देखिए, यहाँ तक तो हमने पूछ लिया। अब हम आते हैं सर्किट पे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब आपको कोई सर्किट बनाना हो तो बार बार आप लिखोगे बल्ब, ठीक है, फिर लिखोगे वायर, फिर लिखोगे भाई यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी के बाद मैंने यहाँ कर दिया स्विच लगा दिया, तो इट विल वेरी डिफिकल्ट टू राइट दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन। सो देर आर फ्यू सिम्बल्स विच आर एसोसिएटेड विद दैट। कुछ सिम्बल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, which by which you can easily demonstrate a circuit. Very first circuit and very first symbol is that
हाउ डज इट लुक लाइक, तो हमें सबसे पहले सेल देखना है। सेल, सेल को देखिए हमेशा हम ऐसे दिखाते हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन जो है पॉजिटिव टर्मिनल बताती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल बताती है। जब एक से ज्यादा सेल हम यूज करते हैं, मोर देन वन सेल, देन इट इज नोन एज बैटरी। अब देखिए 1 2 3, सेल तो 3 हुए, तो जब एक से ज्यादा सेल हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बैटरी। उस बैटरी में भी यही होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। नेक्स्ट आपका सिंबल होता है वायर का। तो वायर जो है एक सिंगल लाइन से आप बताते हैं, ठीक है। अब यदि वायर में जॉइंट है, कोई वायर कहीं से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको ऐसे डॉट से बताते हैं, दिस मीन्स दिस वायर इज बीइंग अटैच फ्रॉम दिस पॉइंट। और यदि कोई वायर क्रॉस कर रहा है विदाउट एनी जॉइंट, कोई वायर है और क्रॉस कर रहा है, तो उसको आप ऐसे बताएंगे, ये ऐसे घूमता हुआ और ये ऐसे होता हुआ, ठीक है। तो इफ द वायर इज नॉट बीइंग जॉइंट, इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम ईच अदर, देन इट विल बी द सिंबल फॉर दिस। नेक्स्ट सिंबल हम देखेंगे बल्ब का। तो बल्ब को हम ऐसे करके भी दिखा सकते हैं और कुछ कुछ बुक्स में इस तरीके से भी होता है। तो ये दोनों सिंबल जो है वो बल्ब के ही हैं, है ना। अब देखिए स्विच का। स्विच जो है दो कंडीशन के होते हैं। हम भी लाइट जलाते हैं तो कभी स्विच को ऑन करते हैं और जब ऑफ करते हैं तो स्विच को प्रेस करते हैं, तो उसका एक फॉर्मेशन होता है। जब लोअर तरफ प्रेस करेंगे तो दैट इज इट इज ऑन, अप साइड प्रेस करेंगे तो दैट इज ऑफ। तो इसी सर्किट में जब हम स्विच को बताएंगे तो स्विच को हम दिखाते हैं ऐसे, इसके अंदर यदि डॉट है ना, तो दैट इज स्विच, है ना। और यदि मैंने स्विच को ऐसे बता दिया यूं, या फिर मैंने इसको डॉट के बिना बता दिया, तो ये दोनों स्विच है वो ऑफ कंडीशन के हो जाते हैं और ये वाला स्विच है वो ऑन कंडीशन के लिए हो जाता है, ठीक है। अमीटर और वोल्टामीटर मैंने आपको बताया ही था, है ना। अमीटर का क्या बताया था मैंने आपको, चलिए एक बार वापस बता देते हैं। अमीटर का मैंने बताया था इट इज ए प्लस माइनस, ठीक है। वोल्टामीटर उसका कैसा हो जाएगा, V प्लस माइनस। अब इसके अलावा रेजिस्टेंस, आपके इसमें रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। वायरिंग में थोड़ा सा ऐसे करके बताते हैं तो दैट इज रेजिस्टेंस। एक इसमें ये भी होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट भी एक इंस्ट्रूमेंट है विच कंट्रोल द रेजिस्टेंस बाय विच यू कैन चेंज द रेजिस्टेंस एज वेल। उसको हम कुछ इस तरीके से बताते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे एरो के लिए। सो दीज आर फ्यू सिंबल विच बेसिकली यूज्ड इन योर इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे, बनाते कैसे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज सर्किट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट, ठीक है। अब देखो मैंने बोला ओपन सर्किट और एक बोला मैंने क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट मींस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, स्विच ऑफ कंडीशन है। और क्लोज सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। चलिए एक सिंपल सर्किट बनाते हैं। ये मैंने बना दी बैटरी, बैटरी के आगे मैंने लगा दिया बल्ब, बल्ब के आगे मैंने चलो मान लो एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया और ये मैंने सर्किट कंप्लीट किया, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि स्विच ऑन कंडीशन में होगा और ऑफ कंडीशन में होगा तो डिफरेंस ये होगा। अब यहाँ पे स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में, दिस इज ऑफ कंडीशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पासिंग विद दिस सर्किट एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सब कुछ ठीक है तो क्यों नहीं हो रहा, तो ये रीज़न ये भी हो सकता है वायरिंग फॉल्टी हो सकती है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, बैटरी कैन बी डिस्चार्ज, तो ये सब रीजंस हो सकते हैं। क्लोज सर्किट मींस सेम सर्किट ही भी हम बना के देखते हैं। ये मैंने बल्ब बना दिया, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ मैंने स्विच बना दिया और ये मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया।
अब ये स्विच जो है वो ऑन कंडीशन में है, तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। So this is closed circuit where electricity is passed through this और बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो ओपन और क्लोज सर्किट समझ में आ गया। अब आगे चलें। अब आगे एक नया लॉ है विच इज नोन एज ओम्स लॉ, और इस लॉ पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लॉ समझ लीजिए। ये लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन अ सर्किट। कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट जब तक कि टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। इफ देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर then the potential difference is directly proportional to current pass in a conductor. तो इसके अकॉर्डिंग V is directly proportional to I. तो V is potential difference, I is current. अब मैं इसको V is equals to RI लिखूंगी। तो R जो है हमारा वो रेजिस्टेंस है, और यहाँ वो किसका काम कर रहा है बताइए। यहाँ मैंने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका काम कर रहा है, एक कांस्टेंट का काम कर रहा है। इसीलिए मैं लिख रही हूँ V इज इक्वल्स टू आर आई, और इसको कभी कभी ये भी लिखते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। दोनों चीजें सेम है, देर इज नो डिफरेंस इन बोथ ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए हमारा ये तो हमने बता दिया। अब एक नई टर्म आ गई, करंट। हमें पता है कि भाई इतना चार्ज एक पर यूनिट टाइम में जो जा रहा है दैट इज करंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि इतना वर्क डन एक चार्ज को ले जाने के लिए जो कर रहे हैं दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब नई टर्म आई है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो टर्म है जो ये बताती है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट के मूवमेंट को रोकती है, रेजिस्ट करती है, रोकती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक ओम्स लॉ जो प्रोपोर्शनल के हिसाब से बनता है, यदि उसका हम ग्राफ देखें तो ये हमें पता है एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ मैंने बनाया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ मेरा आया करंट। तो ये मुझे जो मिलेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मुझे ये स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा बिकॉज ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और इवेंचुअली आई विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये पॉइंटर्स मिलेंगे मुझे एंड आई विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो अब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इट्स अ प्रॉपर्टी, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट पे रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमने बात करी थी, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है रियोस्टेट। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये दोनों काम क्या करता है, रियोस्टेट करता है। तो रियोस्टेट इज अ डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। ओके, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस। चलिए रेजिस्टेंस पे आते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस आया हमारा, दैट इज डिनोटेड बाय आर, और इसका जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम ओम। ठीक है, इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, ओम। अब ये देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, और करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम। सिंपल सी थ्योरी है। 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, और 1 एम्पियर करंट पास हुआ, और जैसे ये हुआ तो इसका जो हमारा रेजिस्टेंस बना दैट इज 1 ओम। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ यही अकेला ही काम करेगा, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर है, ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर।
जितना लंबा वायर उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितना ज़्यादा लेंथ हुई उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितनी छोटी लेंथ हुई उतना रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये मैंने सपोज एक वायर ले लिया, ठीक है। इस वायर को मैं ऐसे काटूंगी, देखो दो तरीके से होते हैं। क्रॉस सेक्शन मीन सपोज ये मेरा वायर है, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से काट रही हूँ, स्लाइस, ककड़ी काटते हैं स्लाइस में, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया। कुकुम्बर कटते कटते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वो मैंने काट दिया, ये मुझे ऐसा सर्कल सा दिखेगा, गोल सा, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रेजिस्टेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स यदि आपका बहुत थिक वायर है ना, तो जब थिकनेस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो थिक वायर जो होगा वो होगा तब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और जब थिन वायर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये आते हैं कि टू वायर हैज़ बीन गिवन, वन इज थिक वायर वन इज थिन वायर, या एक का डायमीटर ज़्यादा है एक का कम है, तो किस में से करंट ज़्यादा पास होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, थिक वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज रेजिस्टेंस विल बी लेस। वाई, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। एक ही आपका होता है टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर, मेटल में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और सेमीकंडक्टर में उल्टा है, जब सेमीकंडक्टर में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। दिस इज हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस। अब जब इन सब को हम मिक्स करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है दैट इज L/A। अब ऑब्वियसली मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करवाना पड़ेगा, तो मैं एक इसमें रो लगाऊंगी एंड दैट इज L/A। अब ये क्वेश्चन आएगा कि रो होता क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया कि भाई ये रो है क्या। तो रो जो है वो है रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ये डिपेंड करती है क्या मटेरियल आप ले रहे हैं, which material you are taking as a wire or as a resistors, आप क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, इसका कोई मतलब नहीं है इसको। इसको ये मतलब है कि आप जो है कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। दैट इज वाई सिल्वर, कॉपर, ये क्या हुए, गुड कंडक्टर, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। एक इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अलॉय है, तो अलॉय अपन क्यों यूज करते हैं सर्किट में, तो इसका रीजन ये है कि अलॉय जो होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है, और उसकी वर्किंग भी ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं वायरिंग वगैरह में और ट्रांसमिशन में। ठीक है। तो कनेक्टिंग वायर जो वगैरह होता है वो कॉपर के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि अलॉय किस में यूज करते हैं, और आयरन दे दिया हमें या कुछ और आपको दे दिया और उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप किस में ज़्यादा होगा। तो यू शुड बी अवेयर कि मेटल्स और अलॉय जो होती हैं उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो 10⁻⁸ से -6 तक की होती है। तो जो अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो यूजुअली थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, करंट इजीली पास होगा। दैट इज वाई दे आर कॉमनली यूज्ड इन केमिकल हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में अलॉय यूज़ करते हैं। उसका रीज़न है कि ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होगा, ज़्यादा टेम्परेचर भी होल्ड कर लेगा, तो हीटिंग इफेक्ट अच्छे से देगा। दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो कभी कभी डिफरेंस आता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, तो आपको ये सारे पॉइंट उसमें कवर अप करने हैं। ठीक है। अब हमने रेजिस्टिविटी कर ली, रेजिस्टेंस कर लिया। अब रेजिस्टर्स जो हैं वो, अब रेजिस्टर्स हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को मूवमेंट के लिए रोकते हैं। तो अब इनका अरेंजमेंट सर्किट में कैसा होता है, किस तरीके से है ना रेजिस्टर्स जो हैं वो हम अरेंज कर सकते हैं। तो रेजिस्टर्स जो हैं
हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं एक सर्किट में। एक तो होता है सीरीज फॉर्म और एक होता है हमारा पैरेलल फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ। सपोज मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है और 3 रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, R1, R2 एंड R3, और मुझे इनको लगाना है कि भई मुझे इसको एक को सीरीज़ पैटर्न में लगाना है सर्किट में और एक को पैरेलल पैटर्न में लगाना है। तो सीरीज़ में लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक के बाद एक इनको अटैच कर दूँगी। ठीक है, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3। ठीक है, यहाँ मैंने बैटरी लगा दी, यहाँ मैंने स्विच लगा दिया और मान लो यहाँ मैंने बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया सीरीज़ का। अब मुझे पैरेलल में लगाना है, तो मैं पैरेलल में कैसे लगाऊंगी, एक के नीचे एक। आई विल अरेंज इन दिस वे मैनर। ये है मेरा पैरेलल अरेंजमेंट। वही मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई, यहाँ स्विच लगाया, यहाँ मैंने बल्ब लगाया। ये हो गया मेरा R1, R2, R3। ठीक है, अब इसका देखो बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं यदि टोटल रेजिस्टेंस देखूंगी सीरीज में, है ना, तो ये मेरा टोटल होगा, टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें जो करंट है वो सब जगह सेम ही जाएगा, I। देर इज नो चेंज इन करंट, करंट विल रिमेन सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। यहाँ पे जो चेंज होगा वो होगा पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा इसमें। एक का होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये एक पॉइंट है, ये है, इसका होगा V1, इसका होगा V2 और इसका होगा V3। तो जो हमारा सीरीज होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हो जाता है हर रेजिस्टेंस का, पर करंट जो है वो सेम ही रहता है, और टोटल रेजिस्टेंस इन सब के टोटल सम से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं अपन पैरेलल में। तो यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ के टोटल रेजिस्टेंस से भी कम होगा। जो मिनिमम वाला जो रेजिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे सपोज एक 7, 8, 9 है, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस किसी 9 रेजिस्टेंस जो हाईएस्ट है उससे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी, जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा, वो है पैरेलल। अब यहाँ पे क्या होगा, 1.13, 1.13, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। यहाँ पे क्या होगा, करंट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ I1 गया, यहाँ से I करंट आया, इधर I1 गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ करंट सेम रह रहा है, यहाँ पोटेंशियल सेम रह रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो रहा है, और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे 1 अपॉन करके प्लस करके टोटल रेजिस्टेंस दे रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, सपोज एक यदि इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो बाकी भी नहीं चलेंगे, क्योंकि वायरिंग जो हो गई वो ब्लॉक हो गई, और जैसे ही वो ब्लॉक हुई वो आगे करंट पास ही नहीं होगा और आगे वाले अपरेटस भी काम नहीं करेंगे। यहाँ क्या होगा, एक अपरेटस यदि खराब भी हो जाता है तो दूसरे वर्किंग करेंगे, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे जो बल्ब है वो नॉर्मल उस तरीके से ही जलेगा, बिकॉज वो करंट तो सेम ही जा रहा है सब में। यहाँ पे जहाँ जिसकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ये ग्लो करेगा। ठीक है, तो यूजुअली जो यहाँ पे यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए होम जो अपनी वायरिंग होती है घरों की वो पैरेलल में की जाती है, क्योंकि यदि बल्ब बंद हुआ तो दूसरा तो जलेगा, यदि सीरीज में एक बंद हो गया तो सारे ही बंद हो जाएंगे। तो ये जो हमारी जो वायरिंग जो वगैरह जो घरों में की जाती है दैट इज यूजुअली अ पैरेलल वायरिंग। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल।
चलिए, अब ये हमने रेजिस्टेंस कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर का, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो यूजुअली जो है वो हमेशा रेजिस्टिविटी पे काम करता है, मतलब वो रोकता है करंट को फ्लो कर, और जैसे ही वो रोकेगा वो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। लाइट तो हो ही रही है, एनर्जी डिसिपेट हो ही रही है और हीट जनरेट हो रही है, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसको हमेशा जो हीट होती है दैट वी नीड टू शो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट हुई H, है ना, I आपका करंट हो गया, R आपका रेजिस्टर्स हो गया, और ये जो हमारा हुआ T दैट इज योर टाइम। ओके, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और हीट जो है वो हमेशा हम जूल्स में गिनते हैं, ठीक है। तो जूल्स हीटिंग ऑफ इफेक्ट ये कहता है। अब ये कहता है जो हीट जनरेट होती है वो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस उसमें लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड द टाइम ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग इट इज बीइंग रनिंग द करंट इन दैट इज ऑल्सो अ प्रोपोर्शनल ऑफ इट, है ना। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम देखेंगे तो हमें हमारे टोस्टर्स में, है ना, गीजर में, इन सब में काम आता है ना। तो इसके अंदर एक कॉइल होती है, वो कॉइल क्या होती है, हीट हो जाती है, रेड हॉट कलर बन जाता है और फिर वो हीट करता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, टोस्टर हुआ, गीजर हुआ, वो सब किस पे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो क्वेश्चन कभी-कभी आता है कि करंट इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, हीटिंग इफेक्ट इतना है, तो टाइम कितना हुआ? तो वो हमको सॉल्व करना है इस तरीके से। अपनी सारी यूनिट डाल देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है, देखिए जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है ना? बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन आता है कभी-कभी, ये हमारा बल्ब है, इसके अंदर ये जो फिलामेंट है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। अब टंगस्टन जो है वो क्या होता है, अलॉय होता है जो बनता है ईदर कॉपर और टिन से। किससे बनता है, कॉपर और टिन से बनता है। और ये जो अलॉय होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक अलॉय है, और सबसे बड़ी बात इसका जो टेम्परेचर है 3380 तक वो हीट हो सकता है, और इसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो लाइट भी ज़्यादा देगा। दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और जल्दी हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जल्दी ऑक्सीडाइज़ भी नहीं होता। जब ये ऑक्सीडाइज़ ही नहीं होगा तो क्या खराब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, और इसके अंदर कुछ इनएक्टिव नाइट्रोजन गैसेज़ हम फिल कर देते हैं। तो वो केवल हीटिंग इफेक्ट शो करता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं देता है। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। एक हमारी एक और डिवाइस है विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब देखिए फ्यूज़ पहले सुना था आप लोगों ने, आजकल एमसीबी भी आ गए हैं। एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये सब क्या करते हैं, जैसे सपोज कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और उसका हीटिंग इफेक्ट जो है जितना होना चाहिए उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है, फ्यूज़ वायर जो होता है वो होता है कॉपर और टिन का बना हुआ। तो टंगस्टन का मैंने बताया आपको कि दिस इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, है ना। अब टंगस्टन क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम बल्ब का फिलामेंट इसका बनाते हैं। उसके अंदर जो इनएक्टिव गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन वगैरह, तो वो उसकी वर्किंग पे इफेक्ट नहीं करती है। अब दूसरा मैंने बोला फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, आजकल एमसीबी भी आते हैं जिसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सपोज बहुत एक्सेस अमाउंट में टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होती गई, होती गई, होती गई, है ना? और जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रही है। तो उस टाइ उस वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा और इट मे कॉज़ शॉर्ट सर्किट एंड ऑल। तो क्या होता है, वो जो वायर होता है वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है एंड इट विल ब्रेक द सर्किट। जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई और कोई भी कैजुअलिटी होने से बच जाती है। इसका जो फ्यूज़ बना होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन, और ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस हम कह सकते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं।
इट ऑलवेज कनेक्टेड विद अ सीरीज, और जो करंट कैपेसिटी होती है वो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है अप्लाइंसेस की, है ना। तो इस तरीके से इट्स अ सेफ्टी डिवाइस। तो क्वेश्चन आता है ना कि कौन से सर्किट में कौन सी सेफ्टी डिवाइस दिखाते हैं, तो उसमें आप आंसर दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज और एमसीबी। एमसीबी इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। Electric power. Electric power means the electric energy is dissipated or it is being consumed in a circuit, electric circuit. That is known as electric power. और उसको बोलते हैं P is equals to VI. Power, electric power, V for volt, है ना, that is potential difference, and I is equals to क्या हो गया हमारा करंट, ठीक है। तो जो भी हमारी जो एनर्जी है इन द फॉर्म, वो कोई डिसिपेट हो रही है या कंज्यूम्ड हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब कभी कभी हमें ये नहीं पता है ना, और हमें दूसरी चीज पता है, तो हम कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल्स टू होता है IR, तो उसकी जगह इसको पुट कर दो, तो ये IR हो गया, एक आई ऑलरेडी है, तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। जब आपको V नहीं पता हो तो इलेक्ट्रिक, तो आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। कभी आपको पता हो कि I नहीं पता है आपको, तो यहाँ अपन देख सकते हैं I इज इक्वल्स टू वी बाय आर, ठीक है। तो हम और कैसे निकाल सकते हैं, P इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई वी बाय आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। सो इस दोनों से एक फॉर्मूला ये, उससे डिराइव किया हमने ये सेकंड फार्मूला, और उससे डिराइव किया हमने ये थर्ड फार्मूला। ये तीनों फार्मूले जो हैं वो इलेक्ट्रिक पावर के हैं। कभी आपको आई नहीं पता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, कभी आपको वी नहीं पता है तब आप इससे पता कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एसआई यूनिट जो होती है, दैट इज नोन एज वॉट। वॉट मीन्स 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर, ठीक है। ये देखो 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर। और जो कमर्शियल लाइन हमारी उसमें जा रही है, जो कमर्शियल लाइन है जो हमारे घरों में जा रही है, दैट इज वो होती है 1 किलो वॉट, है ना, विच इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। ये तो 1 किलोवाट कितना होता है, 3.6 10⁻⁶ जूल, 1 किलोवाट, है ना। और एसआई यूनिट वॉट, ये देखो इसकी मैंने यूनिट वाट बनाई, इसकी यूनिट क्या थी, ऐसे आप यूनिट आसानी से बना सकते हैं यदि एक एक की पता है तो। इसकी वॉट हो गई, इसकी वी की क्या हो जाएगी, वी की हमें पता ही है दैट इज वोल्ट, और इसकी हमें पता है एम्पियर, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 वॉट। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है दैट इज वॉट, और हमारी कमर्शियल जो घरों में यूज करते हैं दैट इज 1 किलोवाट, एंड 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, that is 1 kilowatt. So 1 unit electrical energy, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है यूजुअली इसमें से 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये हमने पूरा थ्योरी वाला पोर्शन एक बार फटाफट रिवाइज किया है। नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी इस चैप्टर का, वो ये बनाऊंगी कि 2-4 न्यूमेरिकल हम चेक करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट segment all about the numericals of this chapter. Okay, thank you.